अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। हमारे पास टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का फर्स्ट, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलिज एट मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये ब्रांच है बायोलॉजी की जो किसके साथ डील करती है, ऑर्गेनिजम्स के साथ, सेल्स के साथ और ऑर्गेनेलिज के साथ। किस लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे। Environmental biology है, environmental biology is the study of organisms in relation to the environment, includes interaction between the organisms and their inorganic and organic environment, especially as it relate to human activities. Environmental biology study करती है organisms को किसके साथ, environment के साथ। किसमें include है, इसमें organisms है, inorganic और organic environment, especially relate to human activities. माइक्रोबायोलॉजी है नेक्स्ट। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म विच इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजा, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। इसमें क्या शामिल है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजा, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। फ्रेश वाटर है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डील करता है ऑर्गेनिज्म के साथ जो कि फ्रेश वाटर में लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज, रिवर, लेक एंड फिजिकल केमिकल पैरामीटर ऑफ दीज वाटर बॉडीज। Marine biology, this is the study of life in seas and oceans. These include a study of marine life and physical and chemical characteristics of the sea as a factor for marine life. Parasitology है, parasitology is the branch of biology which deal with the study of parasites, the structure, mode of transmission, life histories, a host parasite relationship are the studied in parasitology. Human biology है, it deal with the study of a man. This include form and structure, function, histology, anatomy, morphology, evolution, genetics, cell biology and ecological studies etc. of human beings. Social biology है, this is the branch of biology which deal with the study of social behavior and communal life of human beings. Biotechnology है, it deal with the use of living organism, system, process in manufacturing and service in industries. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लाइफ ऑफ इवन द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। इन व्यू ऑफ दिस इट इज समथिंग इज ऑफ अ सरप्राइज टू फाइंड आउट दैट 92 naturally occurring chemicals, only 16 common base used in forming and chemical compounds which form the organisms are made. These are elements and few others which occur in a particular organism called bioelements. If the human body 6 bioelements occur 99% of the total mass. ये हमारे पास इसका चार्ट दिया गया जिसमें बताया गया जो ह्यूमन बॉडीज है उसमें कौन से एलिमेंट कितने परसेंट मौजूद है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और ये फॉस्फोरस है। ये देख सकते हैं ये कितने परसेंट क्या क्या मौजूद है। सिक्स कंपोनेंट्स जो होते हैं बायो एलिमेंट्स किस पे, हमारी बॉडी मास पे मौजूद हैं। नेक्स्ट है द फैक्ट दैट सेम 16 chemicals elements occur in all organisms and the fact their properties different from those in non-living world shows that bioelements have special properties which make them particularly appropriate as a basis for life. Biological organization is not simple, it has high degree of complexity because of which living organisms are able to carry out a number of processes, some very complicated. This distinguish them from non-living. Living things has a built-in regulatory mechanism which interact with the environment to sustain in structural and functional integrity. इसमें क्या बताया गया, द फैक्ट दैट हैज सेम 16 एलिमेंट जो होते हैं किसमें, सब ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। एंड द फैक्ट उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो हमें नॉन लिविंग वर्ल्ड से क्या करती हैं, डिफरेंस बताती हैं कि हमारे में और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास have इनके अंदर shows that some bioelements have special properties होती हैं which make them particularly appropriate for basic life, जो कि हमें एक स्पेशल बनाती हैं नॉन लिविंग से, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट सिंपल, इट हैज़ अ हाई डिग्री डिमांड्स हैं इसकी, ठीक है ना। इस डिग्री की जो डिस्टिंग्विश करती हैं हमें नॉन लिविंग से, सिर्फ डिफरेंस लिखा हुआ है। नेक्स्ट में है आ लिविंग थिंग्स इज देयर फॉर कम्पोज ऑफ हाईली स्ट्रक्चर्ड लिविंग सब्सटेंस और प्रोटोप्लाज्म। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस phenomena of life, biologists for their convenience study the biological organization at different levels starting from very basic level of subatomic and atomic particle to the organism itself and beyond which the study of community, population of entire world are included. इसमें क्या बताया, ये कंपोज होते हैं हाईली स्ट्रक्चर पे, लिविंग सब्सटेंस और प्रोटोप्लाज्म पे, ठीक है। और फेनोमेना ऑफ लाइफ पे बायोलॉजिस्ट इसमें कन्विंस स्टडी कर रहे हैं और ये आगे भी मुख्तलिफ
डिवाइड हुए हैं अलग अलग लेवल्स पे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।